Good morning, everyone. In previous practical class, we were discussing about our first experiment, that is Ohm's law. In that, we have seen that we have to verify through Ohm's law that voltage is proportional to current or current is directly proportional to the voltage applied, and after that we have to calculate or measure the resistance for different type of resistance wires. So in this class we are going to start our first experiment, that is Ohm's law. So what is the statement? To determine resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current. So we have to make a potential and current graph, and after that we will calculate the resistance. So for this we need a circuit of Ohm's law. This is the required circuit. See, a battery is connected, positive terminal of battery is connected to the positive terminal of ammeter, and that negative terminal of ammeter is connected to the positive terminal of voltmeter. Alright, and negative terminal of voltmeter is further connected to a rheostat. I will tell you all these things. Alright, and next the rheostat is connected through a key to the negative terminal of battery. So what are these apparatus? So we need apparatuses, that is an unknown resistance wire, an ammeter, a voltmeter, a battery eliminator, a rheostat, one-way key, connecting wires, some piece of sandpaper for rubbing the wire. Just because I have already rubbed the wire, so I don't need sandpaper. So let's connect this circuit through this particular circuit connection. See, we are going to arrange all these things. See, this is my arrangement in which this is a battery eliminator having a voltage from 0 volt to 12 volt. This is the device that converts a higher 220 volt to lower voltages of 0 volt, 2 volt, 4 volt, 6 volt. We can choose whatever voltage I want. This is for supply only. Alright. Now next, this positive terminal of battery is connected to the positive terminal of ammeter. Alright. So this is the positive terminal of ammeter. So what is the least count of ammeter? This we can verify it, just because considering least count, for 0 to 5 ampere it has number of divisions 10, 20, 30, 40, 50. So 50 divisions and 5 ampere. So 5 ampere divided by 50, 5 by 50, 1 by 10. So it is 0.1, or we can say 0.1 amperes. Alright, तो 5 by 50 0.1 एम्पियर. ये सबसे छोटा क्या नाप सकता है? 0.1 एम्पियर. देखिए इसमें कितने हैं, 0 से 1 तक में कितने डिवीजन्स हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 डिवीजन्स हैं. तो इसलिए इसका 0.1 एम्पियर इसका लीस्ट काउंट हो गया. उसके बाद इसका निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से. वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट कितना है? देखिए 0 से 2 तक में 10 डिवीजन्स, तो 2 by 10. ठीक है, तो 2 by 10 विल बी अवर लीस्ट काउंट, दैट इज 0.2 नहीं 1 by 5. 2 by 10 हो गया 0.2 वोल्ट्स. तो 0.2 वोल्ट, और या तो फिर यहाँ से भी पूरे स्केल से देख लीजिए, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10 by 50, 10 by 50, तो 1 by या 2 by 10, और 2 by 10 हो गया कितना? 0.2
वोल्ट्स, यानी इसका 0.2 वोल्ट लीस्ट काउंट हो गया। इसके बाद जब ये दोनों लीस्ट काउंट हमें पता चल गए, हम कनेक्शन ऐसे ही जोड़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव एमीटर, निगेटिव एमीटर टू पॉजिटिव वोल्ट मीटर, देन निगेटिव वोल्ट मीटर टू अ रिहोस्टेट। सी दिस इज अ रिहोस्टेट। रिहोस्टेट इज सिंपली द वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसमें देखिए ये वायर्स हैं जो वाउंडेड हैं कॉइल की तरह, बहुत करीब से आप देखेंगे तो ये वायर्स नज़र आएंगे। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है 25 ओम्स का, ठीक है, मतलब 0 ओम टू 25 ओम। अभी जहाँ पे ये पोजीशन है, ये तार है, ये इसका अपर एज है, ठीक है, ये इसका लोअर टर्मिनल है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है। अगर मैं इसको इधर मूव कराऊंगा राइट साइड में तो ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। लेफ्ट साइड में क्यों रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा? क्योंकि तार की संख्या ज़्यादा होती जाएगी और यहाँ पे रेजिस्टेंस वायर बढ़ जाएगा बीच में, तो ये रिहोस्टेट हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। यहाँ मैंने फिर रिहोस्टेट के दूसरे एक टर्मिनल पे हमने वोल्टमीटर जोड़ दिया है, देखिए, और जो लोअर टर्मिनल है उस पर हमने ले जाके एक की में जोड़ा है। ये देखिए की ऐसी है कि इसका एक टर्मिनल ये जुड़ा है, एक टर्मिनल ये, बीच में गैप है। इस गैप को फुल करने के लिए, यानी कंप्लीट करने के लिए सर्किट को हम एक इस की का स्विच यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं, पिन ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये सर्किट कंप्लीट है। अभी ये सर्किट नहीं कंप्लीट है, तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जिस रेजिस्टेंस वायर का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर को मैंने एक टुकड़ा उसका ले लिया। इस मटेरियल का रेजिस्टेंस हमें रेजिस्टिविटी कह लें, या इस पर्टिकुलर लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है। ये 20 सेंटीमीटर का एक वायर मैंने ले रखा है, जिसका मुझे लगता है या ये मैग्नीन हो सकता है या ये कॉन्स्टेंटन हो सकता है। जब हम इसका रेजिस्टिविटी जब हम निकालेंगे तभी हम जान सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम मान के चलते हैं कि एक मैग्नीन वायर है जो एक रेजिस्टेंस वायर है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको कहाँ लगाना है, इसको, चूँकि देखिए हमें अभी जो सर्किट में एक नॉर्मल सर्किट है जिसमें कोई एक वोल्टेज अप्लाइड है, वोल्टमीटर एमीटर कनेक्ट है। अगर हम इसको इस तार में से होके करंट गुजारते हैं, ठीक है, और इस तार का होके करंट जो गुजरने वाली करंट है वो आई हो, करंट आई, और इस तार के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो वी हो, तार के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वो वी हो, तो इसका रेजिस्टेंस तार का कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई, ठीक है। और यही हम तरीका यूज़ करने वाले हैं। तो हमें इसको ऐसे लगाना है इस पूरे सर्किट में कि ये जो करंट है ये इसके थ्रू हो के पास करे और इस तार के अक्रॉस हम वोल्टेज नाप पाएँ। किसी तार के अक्रॉस वोल्टेज नापने के लिए हम क्या करते हैं, उस तार के पैरेलल में वोल्टमीटर जोड़ते हैं, तार के पैरेलल में वोल्टमीटर जोड़ते हैं। तो चूँकि हमने यहाँ पहले से ही एक वोल्टमीटर इस सर्किट में जोड़ रखा है, अगर हम इसको ऐसे हटा के समझें कि हमने इस तार को, आप वोल्टमीटर यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ये तार ऐसे जुड़ा हुआ है सर्किट में, अब हम इसके पैरेलल एक वोल्टमीटर जोड़ रहे हैं, यानी हमें क्या करना है कि वोल्टमीटर को इस तार के पैरेलल बनाना है। तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ वोल्टमीटर के पैरेलल इस वायर को। ये इधर जुड़ गया, पैरेलल जोड़ना है तो टर्मिनल दोनों के जोड़ देने हैं बस। ये जुड़ गया ये वायर वोल्टमीटर के पैरेलल, ठीक है। अब आप समझिए कि जो भी करंट इसके अंदर से होके पास करेगी वो इस पर्टिकुलर वायर से होके पास करेगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर वायर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और वही वोल्टेज ड्रॉप और वो कितनी करंट पास कर रही है, अगर हम ये निकाल लें तो हम इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज़ कलेक्ट करके अलग अलग करंट्स पे अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप और सभी कैलकुलेट करते चलेंगे और सभी के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे वी और आई के बीच, और वो ग्राफ इस तार के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, उस ग्राफ का स्लोप, अगर हम वी आई ग्राफ बनाते हैं, और अगर आई वी ग्राफ बनाते हैं तो उसका
रिवर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले जो ये वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं इस एलिमिनेटर सर्किट से, ये केवल एक वोल्टेज है जो इसमें एनर्जी या सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन ये इसके अक्रॉस वोल्टेज हम इससे नहीं नापेंगे, हम इससे नापेंगे क्योंकि हमें तार के अक्रॉस वोल्टेज नापना है और तार के अक्रॉस वोल्टेज तार के पैरेलल वोल्टमीटर जोड़ के निकाला जा सकता है। तार के अक्रॉस करंट वो तार जिस सर्किट में जुड़ा हो उस सर्किट में मीटर जोड़ के निकाला जा सकता है, इसलिए हम ये केवल सप्लाई देने के लिए यूज़ करेंगे। किसी भी एक वोल्टेज पे आप इसको फिक्स कर लीजिए। हम देखिए 2, 4, 6, 8 किसी एक पे भी हम फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए मैंने 4 वोल्ट पे या 6 वोल्ट पे मैंने फिक्स कर दिया। ये 6 वोल्ट पे एक बार फिक्स कर दिया तो ये हमारी सप्लाई वोल्टेज कहलाएगा। कौन सा वोल्टेज? सप्लाई वोल्टेज। अब इसके बाद सर्किट में सब कुछ कनेक्टेड है, बस हमें क्या करना है, सर्किट को ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए हम इस की को इस सर्किट में पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ वोल्टेज नज़र आ रहा है, अभी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अप्लाइड नहीं है। अब देखिए अभी अगर रेजिस्टेंस हमने 0 अप्लाई किया है तो करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज भी मैक्सिमम है। अभी इस टाइम देखिए ये हीट करना शुरू कर रहा है, अभी ये 0 रेजिस्टेंस है। अब जैसे जैसे यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, अभी इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई कर लें जिससे कि हमारी रेजिस्टेंस ये करंट थ्रू दिस वायर बिकम स्लोअर, क्योंकि अगर हम ये करंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो इसके अंदर से ज़्यादा करंट पास होगी, बहुत जल्दी हीट कर जाएगा तो ये जल भी सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले बहुत ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस पे रख के शुरुआत करते हैं। हमेशा कैसे करनी चाहिए, रिहोस्टेट को सबसे ज़्यादा पे रख के शुरू करना चाहिए जिससे करंट मिनिमम रहे सर्किट में। अब देखिए हमें अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट, देखिए यहाँ पे आप तो कहें समझेंगे कि जब यहाँ पे वोल्टेज हमने एक बार फिक्स कर दिया सप्लाई वाला तो अलग अलग वोल्टेज पे कैसे हो रहा है, लेकिन समझिएगा कि ये जो वोल्टेज है ये केवल सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है, ये वोल्टेज अक्रॉस वायर नहीं है, दिस इज ओनली द सप्लाई बैटरी। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस वायर विल बी द वोल्टेज ड्रॉप थ्रू दिस करंट। और अभी अगर करंट 0 रख रहे हैं तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप भी कम ही होगा। देखिए यहाँ दिख भी रहा है मिनिमम है, ठीक है, कह सकते हैं 0 है। अब देखिए 0 एरर भी एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए अभी इस केस में आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने रेजिस्टेंस मैक्सिमम कर रखा है या फिर अगर मैं अभी सर्किट को ऑफ कर दूं तब भी ये जो वोल्टमीटर है ये एक रीडिंग एक्स्ट्रा कहीं, अच्छा नहीं व्यू है कुछ गड़बड़, ये 0 पे ही है, यानी पिन इनिशियली 0 पे है, यानी इसमें 0 एरर कितनी है, 0। इसमें देखें इसमें 0 एरर कितनी है, 0। तो इसका मतलब हमारी 0 एरर दोनों ही सर्किट में 0 है। अब देखिए शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमने इस सर्किट में रेजिस्टेंस हायर रखा है, जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को कम करते जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज की तरफ देखिएगा, क्या वोल्टेज बढ़ रहा है। देखिए वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, अभी 2 डिवीजन्स वोल्टेज की वैल्यू है, ठीक है, देखिए 2 डिवीजन है कि 1 डिवीजन, अभी दूसरे वाले डिवीजन पे शो कर रहा है, यानी सेकेंड डिवीजन वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, सेकेंड डिवीजन, ठीक है, 2, और इसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.2 वोल्ट, यानी 2 × 0.2 कितना हो गया, 2 2 4, 0.4 वोल्ट इसका क्या हो गया, अभी का वोल्टेज है, यानी 0.4 वोल्ट हमारा इनपुट वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितनी है, यहाँ देखिए किस डिवीजन पे है, ये डिवीजन दिखा रहा है चौथा, ठीक है, फोर्थ नहीं, 5th डिवीजन, तो 5 और 5, लेकिन लीस्ट काउंट इसका कितना था, 0.1 एम्पियर, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया, 0.5, यानी 0.4 पे 0.5, 0.5 ये आ गई करंट की रीडिंग, और वोल्टेज की रीडिंग कितनी है, 0.4, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को और कम किया, देखिए, ताकि ये वोल्टेज बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पे अब कितने डिवीजन हैं, 4 डिवीजन्स हैं, ठीक है, 4 डिवीजन यहाँ पे है, यानी 4 2 8, 0.8 वोल्ट। यहाँ कितने हैं, ये पूरे 12 डिवीजन्स हैं, 11 डिवीजन्स हैं, 11, ठीक है। तो
ये 11 डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाई 0.1 यानी 0.11, 0.11, ठीक है। और ये वोल्टेज कितना हो गया, 4 डिविजन्स, तो 4 2 ज़ा 8.8 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमने वोल्टेज को और ये रिहोस्टेट से रेजिस्टेंस को और कम किया सर्किट के, कम करते ही अब ये कितने हो गए, हमने कम किया तो अब देखिए कितने, यहाँ पे देखिए 6 डिविजन्स, यहाँ पे कितना करंट 2 के बाद 2 यानी 20 2 22, 22 और यहाँ पे कितना था 6 2 ज़ा 12 यानी 1.2 वोल्ट पे कितना हो गया 22 मल्टीप्लाइड बाई 1, 0.2, देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये कुछ वो है क्या कहते हैं, कितने डिविजन्स थे 11 डिवीजन, ये 1.1 वोल्ट था, 1.1 एम्पियर, और अब क्या हो गया 2.2 एम्पियर्स करंट, 2.2 एम्पियर। अब इसके बाद हम और वोल्टेज बढ़ाते हैं, बढ़ा के अभी मैक्सिमम पे 2 वोल्ट कर देते हैं। देखिए 2 वोल्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। 2 वोल्ट पे कितना 4 एम्पियर, ठीक है। 2 वोल्ट पे 4 एम्पियर, ठीक है। अब हम इसको स्विच बंद कर दें क्योंकि ये वायर बहुत हीट हो चुका है। अब देखिए ये तो हमने रीडिंग्स ले लिया, अब रीडिंग मैंने ली क्या है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है हमारी टेबल कैसे फॉर्म है, अमीटर रीडिंग, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, करेक्टेड वैल्यू, वोल्टमीटर रीडिंग, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, करेक्टेड वैल्यू एंड रेजिस्टेंस। सी फर्स्टली आई विल पुट वैल्यूज ऑफ लीस्ट काउंट, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर, मैंने आपको पहले बताया मैंने 20 सेंटीमीटर लिया है, आप सभी पेंसिल का यूज़ करेंगे, मैं ब्लैक पेन कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो। ये लेंथ लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर मैंने कितना देखा 0.1 एम्पियर, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर कितना देखा 0.2 वोल्ट, जीरो एरर दोनों में 0.00 0.00 थी, ठीक है। ये एम्पियर वोल्ट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो मैंने रीडिंग्स ली हैं इसको हटा दीजिएगा क्योंकि ये कुछ गलत लिख गई थी। 0.4 वोल्ट पे 0.5 देखा था, है ना, 0.4 वोल्ट पे 0.5, 0.8 पे मैंने 1.1 देखा था, 1.2 पे मैंने 2.2 एम्पियर्स देखा था। ये एम्पियर्स में है, ये वोल्ट में है। लेकिन करेक्टेड वैल्यूज़ क्या है, देखिए करेक्टेड वैल्यू जीरो एरर को माइनस करके की जाती है या जीरो एरर को ऐड करके, लेकिन यहाँ पे तो सेम है, तो यानी सेम यही वैल्यू आप दोबारा से नोट कर देंगे। अब आप इंडिविजुअली रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चाहे तो कैलकुलेट करके यहाँ लिख सकते हैं, जो भी रेजिस्टेंसेस आए। फिलहाल मैं इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं हूँ। देखिए हमें करना क्या चाहिए, एक ग्राफ प्लॉट करना चाहिए। ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम एक ग्राफ लेंगे, ग्राफ पेपर, ठीक है ना। ग्राफ पेपर पे वाई एक्सिस पे हमारा वोल्टेज होगा, एक्स एक्सिस पे हमारा करंट होगा। वाई बिकॉज इट इज एक्चुअली आई वी ग्राफ विच गवर्न्स द ओम्स लॉ। क्यों आई वी ग्राफ, क्यों, क्योंकि वी जो है वो इनपुट है और आई आउटपुट है। तो हम सभी वैल्यूज़ को, वोल्टेज की सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। कोई भी अपनी एक स्केल बना लीजिए, चूँकि देखिए हम मैक्सिमम 2 वोल्ट तक का ले रहे हैं, तो आप ऐसा बनाइए कि हर 5 डिवीजन पे आप 0.1 वोल्ट कह लीजिए, ठीक है ना। तो अपने आप ही 5 बढ़ते बढ़ते 2 वोल्ट तक आ जाएगा। और इस तरह से एक्स एक्सिस पे बनाइए। वाई एक्सिस पे देखिए हम 0.5 एम्पियर, 1.1 एम्पियर, 1.2 एम्पियर ऐसे ले रहे हैं। तो उसके लिए आप 0 से 4 एम्पियर तक के लिए यानी 5 एम्पियर तक के लिए बनाइए, यानी 10 डिविजन्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 1।
ये आप इस तरह के ग्राफ में, ये वाले डिविजन्स में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक में आप ये शो करिए कि ये करंट 1 एम्पियर है, ठीक है, इसके बाद ये 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, या तो फिर आप इसको डबल डबल कर लीजिए। ऐसी स्केल बनाइए कि ये प्रॉपर पूरा बड़ा ग्राफ बने, ठीक है। उसके बाद आप सभी इसमें क्या करेंगे, आप उन पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। फिर मार्क करने के बाद उस पर्टिकुलर स्लोप को निकालेंगे, यानी डेल्टा आई बाई डेल्टा वी आपको कैलकुलेट करने आता है कि आप एंड पॉइंट्स 2 ले लीजिए, उसके बाद एक ट्राइंगल बनाइए, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस यूज़ करिए और टेन थीटा निकालिए। फिर टेन थीटा के थ्रू आप क्या निकालते हैं, वो डेल्टा आई बाई डेल्टा वी निकलेगा। फिर डेल्टा आई बाई डेल्टा वी को आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा आई निकलेगा, है ना। और वही हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये केवल रेजिस्टेंस होगा। और रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे। फिर जब रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर आ जाएगा तो आप इस प्रॉपर रिजल्ट को ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट को ऐसे लिखना चाहिए, उसके बाद लास्ट में प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो देखिए यहाँ प्रॉपर मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कि हमारा सर्किट क्या था, ठीक है। मैं सर्किट यहाँ पे बना रहा हूँ फिर से। देखिए सबसे पहले तो बैटरी, जो मैंने एलिमिनेटर यूज़ किया है, बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। उसके बाद बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट क्या किया था मैंने, एमीटर का पॉजिटिव। एमीटर हमेशा ऐसे ही कनेक्ट होता है, ठीक है ना, एमीटर। देन आई हैव कनेक्टेड द रेजिस्टेंस वायर। देखिए मैंने पहले वोल्टमीटर आपको कनेक्ट करके दिखाया था, लेकिन एक्चुअल में हम वायर को लाइन से लगा रहे हैं। वायर ऐसे जुड़ गया, फिर अगले वायर के बाद क्या जुड़ेगा, ऑब्वियसली रिहोस्टेट जुड़ेगा। यहाँ एक की जुड़ेगी, मतलब यहाँ हम आएंगे तो रिहोस्टेट में जोड़ देंगे, चूँकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। ये क्या है, रिहोस्टेट। ये क्या है, रेजिस्टेंस वायर, जिसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये क्या है, एक की है जो अभी ओपन में शो कर रहा हूँ। ये एक बैटरी है, ऑल राइट। दिस वन इज अमीटर। नाउ दिस इज how the circuit is connected. After this we have to calculate the voltage across resistance wire. So potential voltmeter is connected parallel to this resistance wire, ठीक है। और पॉजिटिव का पॉजिटिव से, यानी बैटरी के पॉजिटिव से वोल्टमीटर का पॉजिटिव, बैटरी के निगेटिव से वोल्टमीटर का निगेटिव। तो ये सर्किट हमारा एक ओम्स लॉ का सर्किट है, ठीक है। लीस्ट काउंट आपको निकालना आता है, आप दोबारा से उसको रिपीट करिए। अब हम देख लेते हैं कि रीडिंग्स हमारी क्या थी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज़ में ग्राफ प्लॉट करके चलते हैं कि कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, आपको ये सारा घर पे करना है। जो रीडिंग्स यही हैं यही यूज़ करनी है, ठीक है। सभी लोग इस चीज़ को प्लॉट करेंगे। सी हियर वी हैव अ ग्राफ। यहाँ पे हमने इस वाले पॉइंट को 20 डिविजन्स में दूर दूर पॉइंट मार्क कर लिया। 0 से 2 एम्पियर तक जाना है, तो यानी यहाँ पे मैंने इसको कह दिया ये 0 है। ये इधर वाले में हम क्या शो कर रहे हैं, वोल्टेज। ये क्या है, करंट, ऑलराइट। ये किस में है, एम्पियर्स में। ये किस में है, वोल्ट में। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। नाउ पुट द वैल्यूज। इसको कह लें 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। देखिए मैंने रीडिंग्स कम ली हैं, मुझे 1-2 और लेनी चाहिए थी तो ज़्यादा बेटर आता। अब देखिए यहाँ पे भी वैसे ही करिए। इसको कह दीजिए जैसा हमारी रीडिंग्स है करंट की 5, 1.1, 2.2, 4.0, 4 तक जा रही है। तो यहाँ पे 0.5, 1.0, ये वाली को 1.5, इसको 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 3.5, some more distance,
and this is 4.0. All right, so this is current. Now putting the values कहाँ कहाँ पे है, 0.4 पे 0.5, यहाँ कहीं पे ये होगा 0.4, ठीक है ना, 0.4 पे 0.5 यहाँ कहीं पे, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, 0.8 पे 1.1, 0.8 यहाँ कहीं होगा, 0.8 पे 1.1, 1 है, इससे यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। उसके बाद 1.2 पे 2.2, 1.2 पे 1.25 है, तो 1.2 यहाँ कहीं होगा, इस पे 2.2 यहाँ कहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट इज 2.0 पे 4, 2.0 पे 4, ये रहा लास्ट पॉइंट। अब देखिए ये सारे पॉइंट मिल गए हैं हमारे, सारे पॉइंट तो मैच नहीं करेंगे, बट जितने भी यहाँ मैच कर रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए कितने पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, ये 4 ही पॉइंट मैंने ले रखा था। देखिए ये ऑलमोस्ट इस तरह का बनेगा, कुछ 0 की तरफ जाता हुआ। इसमें थर्ड पॉइंट कुछ डिस्टेंस पे है, बट इट डजेंट मैटर, ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, हमें हर पॉइंट को मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब देखिए इसकी सबसे खास चीज़ क्या है, देखिए अगर मैंने 0 से पास कराया होता तो ये कहीं 20 से जाता, ये कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट होता। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारा जो ग्राफ हो, ये मैं डॉटेड अलग से बना रहा हूँ, जो एक्चुअल में बनाना चाहिए था, ठीक है ना, ये वाला आप ऐसा ही बनाएं कि कर्व फिटिंग इसी को कहते हैं, कि आप कुछ एरर्स को दोनों साइड लेके चलें। अब इसके बाद जैसे ये डॉटेड वाला है, डॉटेड वाला हमारा एक्चुअल कर्व नज़र आ रहा है जो ज़्यादा प्रॉपर दिख रहा है। इसमें आप एंड पॉइंट्स ए और बी बनाएं, क्योंकि 0 से पास होना चाहिए था और सभी के बी से होकर गुजारना है, ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ। और देखिए अगर हम ये वाले को बनाते हैं तो भी एक रफ आइडिया रहेगा रेजिस्टेंस का, तो आप चाहे इस वाले ग्राफ को यूज़ करें, हार्ड लाइन वाले को, चाहे एक डॉटेड लाइन वाले को जो 0 से पास कर रही है। 2 एंड पॉइंट्स लेंगे, एक ये एंड पॉइंट लिया, जैसे मैं हार्ड वाले को यूज़ कर रहा हूँ, और एक ये एंड पॉइंट लिया। अब इनसे होके मुझे क्या करना है, ट्रायंगल फॉर्म करना है, ठीक है ना। एक ये हो गया ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, मतलब ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, और एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया ABC। नाउ दिस इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द टेंजेंट। तो ये परपेंडिकुलर, बेस, और यहाँ से आप इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप जो होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। फिर आप यहाँ पे इसकी स्केल लिखेंगे, जो भी जैसे आपने 11th में सीखा है, ठीक है। और इस तरह से आप रेजिस्टेंस एक उस वायर का निकाल लेंगे, जिसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में अपनी फाइल में लिखेंगे। तो ये सारा ही सेम रीडिंग को लेते हुए आपको करना है, और कुछ रीडिंग्स जो एक्चुअल है वो हम आपको बाद में प्रोवाइड भी कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।